हम्म। ठीक है, पीयूष। ओके, व्हाट आर द एरियाज दैट यू हैव स्टडीड सो फार? Uh, Sir, I had completed internal audit and some part of the statutory audit, and you had also given the banking question. I also read out the banking question and with some essential question parts. Okay, Saurav, Yes, sir. Hello. what you have done? What you have done? Yeah. Sir, I have done statutory audit parts, and Okay. tomorrow I will, and after this smoke, I will start banking questions. Tullu, What, sir? म्यूट में हो टुल्लू। Okay. Yes, sir. Sorry, sir. Good evening, sir. Sir, I have done only internal audit part and also some doubts and extra questions are also mine. Only internal audit part. Internal audit you have done. Yes, sir. Mohit Lodi. I have completed the majority part of stat audit only, sir. Stat audit. Surbi. Sir, I have completed the statutory audit, internal audit, Ind AS, and sir, some part of direct taxes and indirect taxes I have also completed. Sir, in indirect taxes and DT, only 3 to 4 chapters are left. Rest I have done. Subham Nema. What are the things you have done? Sir, I have completed some part of statutory audit and some part of internal audit and index part, but that also not fully completed. Just a second now. Give me a second. Siva Kumar Reddy. Siva Kumar Reddy. Sir, I have completed statutory audit, sir. Statutory audit part. And internal audit part is pending somewhat. Stat audit, okay. So I will be asking questions on stat audit, okay. How will you start a audit? Who will say? Who will start? How will you start a statutory audit? Yes, sir. Hmm. Before going to start statutory audit, auditor first thing have to planning. Under the planning, auditor plan for the whole strategy of the organization and also planning for audit and also understanding the entity, then start the audit. Under the audit time, he can change his planning as per the requirement of the audit. Right. What are the areas that you will check in planning? Area are checking by the auditor as per the organization requirement. Suppose in a organization manufacturing company, he has to specify the part of the he has to divide the categorization of the field, means purchase department, sales department, other HR department for salary, and other taxation part, and accounts related to all the parts. Right. Okay. What is analytical procedures in audit planning? Sir, Anybody wants to try? Subham name on yes, the sir. video, ठीक है? On the video को. Yes. Sir, analytical procedure in I an need only audit 2 hours of involve the dedication at your end. अगर आप लोग 2 hours का dedication दे देगा, आपका 20-25 दिन बच जाएगा. ठीक है? 20-25 दिन बच जाएगा आपका, मेरा भी टाइम बचेगा. और आप लोग को चाहिएगा भी नहीं कोई याद. I need time at your end. Adjusting the camera. हाँ, ठीक है. ठीक है?
ठीक है, तो अपना डेट नोट करिए, नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। ओके, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर इन ऑडिट प्लानिंग? Sir, analytical procedure in an audit planning involve the checking of the financial as well as the non-financial area. So basically, it covers the checking of ratio analysis and trend analysis. In ratio analysis, we have to compare the previous year figure with the current year figure and check what are the fluctuation and what are the adverse or favorable results are made in the ratio. And so the second one is checking of the trend analysis. So here we have to check the company's past performance and the current year performance in respect of previous year. So for example, we have to check the sales growth, net profit growth, expense growth, fixed asset growth, etc. When you're saying an answer now, you're saying too fast, Surbhi. Okay, sir. And So that also needs to be improved. analytical. Okay, that needs to be improved. If you're saying too fast, and Yes, it is sir. happening because you're little bit nervous. So you need to be slow down Yes. your answer process. Okay. So in audit planning, Okay. there are 3 or 4 points that you need to remember. First of all, understanding the business of the client. We have already discussed in the Yes. Excel sheet also. Understanding the business of the client. Yes. I'm just sharing this. Okay. So because this is asked nowadays in every audit. Okay. So So just what is SOX audit? we'll cover that. Okay. SOX audit is like IFC or audit only. IFC audit. So what you do in IFC, you do in SOX. US based companies do. I've given the video also there. Okay. So you write out here, you see the workbook, na? Out here you do workbook, fine, and put your planning. You might get something. Just a second. Okay, sir. ये बहुत करना पड़ेगा. Control F. How to start an audit? If you write like this, you'll get all the points. You might get something audit planning. You write analytical procedures. Okay, analytical. Yes. Right. You might get. Yes, there it was. Control Shift Enter. You can see now case study based where it is. How will you start an audit? How will you start an audit? Planning. These are the activities that you need to perform. Pre-engagement activities, business annual report, understanding revenue model, variance analysis that you need to do. Identify the significant accounts, determining the mortality levels, identify the audit risks, rewrap, control testing, nature, timing, extent of audit procedures. Sir, this is the sir, those points are the part of the audit programming, sir. So, yes, you're saying Sir, something. Yeah. Sir, this point are the part of the audit programming. If the question asked what is audit programming, then we are Planning also we replying do in this this. only. In planning only, in the planning first there is a pre-engagement activities. Okay. So in Yes, CFM you yes. don't do this. In the Big Four you do this. So there is a pre-engagement activities, letter of engagement. So there is a letter of Yes, sir. engagement, terms and condition. Then you understand the business of the client. ये तो आप लोग भी करते हैं. Like you understand the business Yes, of sir, the yes. client. You understand the annual report, understanding revenue model. Last time who was the auditor? What was the audit observation? Auditor Very easy. observation. If it's a new client, what you do? Opening balances आप लोग check करते हैं. कॉमन Yes, sir, पॉइंट तो आप yes, लोग sir. बता सकते हैं. ये वाला पॉइंट कोई Yes, करता sir. नहीं. वेरिएंस एनालिसिस, दिस इज द पॉइंट व्हिच नोबडी डज. वेरिएंस एनालिसिस कोई नहीं करता है. एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के बेसिकली आप करंट ईयर और पास्ट ईयर का फिगर्स को वेरिएंस एनालिसिस करके देखता है कि इसमें कितना वेरिएंसेस है. ठीक है. Yes, ये sir, क्वेश्चन yes, sir. पढ़ता We है. are sir doing, sir. हाँ. फिनेंशियल्स Yes. आपको जब आप जाएगा ऑडिट में, व्हेन यू गो फॉर एन ऑडिट, ओके, तो अप टू February यू गेट एन ऑडिट रिपोर्ट. ओके. मान के चलिए आपने जब अकाउंटेंट के पास जाएगा उसको मांगेगा फाइनेंशियल्स, तो वो मार्च का नहीं देगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो बोलेगा कि अभी तक ऑडिट रिपोर्ट अपडेटेड नहीं है. इट हैज हैपेंड विथ यू, शुभम नेमा या कोई भी. तो सोच के देखिएगा व्हेन एवर यू गो फॉर एन ऑडिट, ओके, आप क्लाइंट से फाइनेंशियल्स मांगेगा, बैलेंस शीट एंड P&L. हो सकता है एक मिनट sometime. तो आई वाज सेइंग दैट कि जब आप इसमें जाएगा
फिनेंशियल्स के पास, जब आपने व्हेन यू गो फॉर एन ऑडिट, ओके, पहले तो आप बिजनेस को समझ किया और यू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, ओके। आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिया, कुछ भी रिपोर्ट पढ़ लिया, ऑडिट का रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशंस पढ़ लिया, समझ गया। आप वेरिएंस एनालिसिस करेगा, उसके लिए आपको फाइनेंशियल चाहिएगा ना, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो लगेगा ना आपको, करेक्ट? यू Yes, गेटिंग माय yes, पॉइंट sir. ना? मोस्ट ऑफ द Yes. केसेस वो लोग आपको फाइनेंशियल्स देगा नहीं, बोलेगा अभी तक कंप्लीट नहीं होके रखा है, तो बोलेगा जितना होके रखा है हमको दो, वो बोला अब जनवरी फरवरी तक हुआ है, अगर जितना भी वो दे रहा है आपको, यू विल टेक द फाइनेंशियल्स और आप लोग उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेगा। एक्स्ट्रापोलेट मतलब Yes. यूनिटरी मेथड किया है ना, अगर 10 महीना का फाइनेंशियल है तो उसको 12 महीना का करने में आपको आता ही है। मान के चलो 10 महीना का सेल 5 लाख है, तो 6 महीने 12 महीना का सेल 6 लाख रुपया होगा, तो अब एक्स्ट्रापोलेट होगा। कर लेगा, ये सब चीज बोलेगा उधर में, तो वो लोग को बोलेगा भाई आता है। एक्स्ट्रापोलेट करके आपका वेरिएंस निकालेगा, वेरिएंस निकाल लिया सेल और इसका कितना वेरिएंस है, अब वेरिएंस जैसे आपका निकल गया, तो वो वेरिएंस को आपको फिर देखना है कि उसमें से सिग्निफिकेंट अकाउंट्स क्या है। सिग्निफिकेंट अकाउंट्स मतलब मान के चलो सेल में काफी वेरिएंस आ रहा है, परचेज में काफी वेरिएंस आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, देखिए जब सीए फर्म में आप लोग काम करता है, व्हेन यू डू वर्क इन अ सीए फर्म, तो आप लोग जाके सीधे वाउचिंग शुरू कर देते हैं। सेल रजिस्टर पकड़ा, टिक 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 टिक, मतलब आपको कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब नहीं है, बस सेल करना है, परचेज करना है। अब बिग फोर वगैरह में क्या होगा, या टॉप 20 सीएफएम में भी होता है, ज्यादा करके बिग फोर में ज्यादा करके ये चीज होता है कि आपको वेरिएंस एनालिसिस करेगा, आप हर अकाउंट में माथा नहीं लगाएगा। अब जो अकाउंट जो मान के चलिए आईटी सेक्टर है, इन्फोसिस है, तो उसमें फिक्स्ड एसेट में कोई मूवमेंट नहीं होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो वो उसका सिग्निफिकेंट Yes. अकाउंट नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंट मतलब जिसमें वेरिएंस ज्यादा है, जिसमें रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा हो सकता है, जिसमें हमको चेकिंग ज्यादा करना है, तो वेरिएंस एनालिसिस अब क्यों कर रहा है, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स निकालने के लिए और नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जानने के लिए कि हमको नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कितना रखना है। ये सब आपको ऑडिट प्लानिंग में बोलना है, ये सब बोल देंगे। फिर मेटेरिलिटी लेवल से ओवरऑल मेटेरिलिटी, प्लानिंग मेटेरिलिटी, परफॉर्मेंस में ओवरऑल परफॉर्मेंस, और वो ये ज्यादा बिग फोर्स वगैरह में होता है, आपने आप स्किप भी कर सकते हैं पॉइंट। फिर आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क एंड द बिजनेस रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है शुभम नेमा, क्या हो सकता है ऑडिट रिस्क? Audit risk पूरा होता है, like मतलब it's CID the whole risk, and it is it is divided into risk of material misstatement and detective risk, कंट्रोल and the इनहेरेंट risk of डिटेक्शन, material वही ना, हाँ, कंट्रोल इनहेरेंट it's डिटेक्शन, like ठीक risk है। of material misstatement again divided into two, inherent and control, हाँ, and another one वही चीज is है, तो आपको देखना है detective. But क्या sir, है इसमें Yes, answer, ऑडिट रिस्क but है। yeah. और what is but the interviewer if he asks what is audit risks as per Audit direct risk is the risks audit risk when the is the risk that auditor will give unmodified opinion even though the opinion financial statement are misstated. financial statement or material misstatement. This is not the ऑडिट whole definition. I don't feel so. This is not the whole ऑडिट रिस्क में आपका सीआईडी This आएगा, is something याद रखना, like सीआईडी, कंट्रोल Yes, yes. इनहेरेंट Control डिटेक्शन, risks, inherent in detection risks. ठीक And है, the control and inherent risks as the risks of material misstatement. ठीक है। दूसरा चीज आपका ये भी बोल देना एक्स्ट्रा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मतलब सीआईडी भी बोल देना Yeah. और ये भी बोल देना, रिस्क नहीं रहेगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क होता है ऑडिट का, ठीक है। तो okay. आपको पूछ सकता है घुमा फिरा कर कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या होता है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट ही अपना इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करके फ्रॉड कर रहा है, मतलब हम आपको सिंपल एग्जांपल दे सकता है अच्छा। पर हम देना नहीं चाहते। हम मान के चलो हम एक डेडलाइन बनाया कि ये समय होगा, हम अपना ही ओवरराइड कर रहे हैं अपना कंट्रोल को, मतलब एक कंट्रोल सेटअप किया है, वो कंट्रोल को हम खुद ही ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब कोई एंट्री कोई पास किया और एंट्री में कुछ ना कुछ कर दिया और अकाउंटेंट को पता ही नहीं है, इनकरेक्ट एस्टिमेट, इनएप्रोप्रिएट प्रोविजन, कुछ भी जो मैनेजमेंट ही कर रहा है, सेल को बढ़ा रहा है शायद सैलरी ज्यादा मिल जाए, सेल दिखा देते हैं एक सेशन में और दूसरा में सेल रिटर्न। ये हम कल ऑडिट का फ्रॉड भी डिस्कस किया था, टीमिंग एंड लीडिंग वगैरह, तो फ्रॉड वगैरह सब डिस्कस किया था, चैनल में डाल दिए, तो वो सब कल हम किया भी था, तो वो सब मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का पार्ट है। तो ये बोलना है कि हमको ऑडिट रिस्क देखना है, एज एन ऑडिटर यू सी द व्हाट आर द ऑडिट रिस्क दैट कैन हैपन, व्हाट इज द कंट्रोल रिस्क व्हाट दे हैव, इनहेरेंट रिस्क क्या हो सकता है इसका, क्या कैसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, व्हाट विल बी द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल रिस्क, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, इतना ज्ञान भी दे देंगे तो खुशी हो जाएगा। फिर बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है, व्हाट इज बिजनेस रिस्क?
अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, Sir, कंपटीटर, लिटिगेशन, एनुअल रिपोर्ट, इंडस्ट्री, ये सब देख के पास्ट ऑब्जर्वेशन, ये सब बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकता है, कोविड के कारण इम्पैक्ट तो नहीं है, ये आपको बोल देना है। फिर रैप क्या होता है, रैप क्या होता है? uh, रैप में देखिए आपका बिजनेस रिस्क देखता है, ऑडिट रिस्क देखता है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन देखता है। अब मोटा मोटी भी बोल देगा ना इतना, वो खुशी हो जाएगा, समझे। फिर कंट्रोल टेस्टिंग भी आप प्लानिंग में ही कर लेते हैं। फिर नेचर टाइमिंग एक्सटेंड वो देख लिया। कंट्रोल टेस्टिंग पूछ सकते हैं, कंट्रोल टेस्टिंग में क्या क्या चीज आता है। कंट्रोल टेस्टिंग में तुम्हारा एक तो वॉक थ्रू होगा, डीएनआई होगा, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होगा। डिजाइनिंग फेज में और ऑपरेशनल फेज में टेस्ट करेंगे कंट्रोल को कि डिजाइनिंग फेज में है कि नहीं कंट्रोल, और ऑपरेशनल फेज में भी द कंट्रोल्स आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट। ठीक है शुभम नेमा, कंट्रोल टेस्टिंग समझ गए आप क्या होता है कि नहीं समझे? Sir, what is the difference between control testing and internal financial control testing? देखिए आपका ये सारा डाउट सब लिख के रखिएगा, आप लिख के रखिए जो भी डाउट है ना, ले लेके क्रॉस क्वेश्चन में अभी वो हो जाएगा, लिख लीजिए आप जो शॉक्स और एडिट वगैरह सब ले लेके। शुभम नेमा, यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई चीज को लेके डाउट है तो हमको बताइए, ऑडिट प्लानिंग को लेके। नहीं सर। कंट्रोल टेस्टिंग sir, क्या एक होता बार है समझे? कंट्रोल सर एक बार और कंट्रोल टेस्टिंग को रिपीट कर दीजिए। हाँ, हाँ, एक कंट्रोल बार टेस्टिंग पूरा क्या होता है? कंट्रोल टेस्टिंग समराइज बहुत इजी करिए। है, आपको एकदम सिंपल बताता है कंट्रोल टेस्टिंग। भूल जाइए ऑडिट को। आप लैपटॉप खरीदने जाता है तो आप क्या करते हैं, दुकान के पास गया, उसको पूछता है कि अपना स्पेसिफिकेशंस बताइए, जो स्पेसिफिकेशंस जो अगर वो बताता है उसको बोलता है वॉक थ्रू। आप जीएस प्रेम आया तो जीएस प्रेम हम समझाया होगा, हम तो इसे समझाता नहीं है वैसे, पर कोई समझाया तो वो हम वॉक थ्रू करा रहा है, बोले सैंपल चेक कराइए, डेमो क्लास लेगी आपका, उसको बोलता है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है? कैसे भी करके समझने का कोशिश करिए। वॉक थ्रू मतलब आपने मोबाइल खरीदने गया तो मोबाइल का वो स्पेसिफिकेशन बताएगा, उसको बोलते हैं वॉक थ्रू। और डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एक दो सैंपल चेक करके दिखाइए, हमको ये स्पेसिफिकेशन चेक करना है, तो हो गया डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। उसको देखना चाहता है कंट्रोल का डिजाइन सही है कि नहीं। टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, आप लैपटॉप को घर में ले गया, उसमें कुछ ना कुछ तो जो बताया था 40-50 सैंपल देख के, वो थ्रू आउट द ईयर आप चेक करते रहते हैं, वो हो गया आपका टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो ऐसे करके याद कर लीजिए, वॉक थ्रू मतलब प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करता है ऑडिटर। डिजाइन इंप्लीमेंटेशन आप एक दो सैंपल लेके, तो उसका जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है वो आप चेक कर लेते हैं। मान के चलो प्रोक्योर टू पे है, तो बोला पीआर ये दिखता है, पीओ ये रेस करता है, जीआरएन ये रेस करता है, ये रेस करता है, वो आप सैंपल बेसिस में बताए, एक दो हमको दिखाइए डॉक्यूमेंट, हम चेक करेगा अपना सेटिस्फेक्शन के लिए कौन कौन क्या रेस कर रहा है। वो क्या डिजाइन इंप्लीमेंटेशन। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या हो गया, ज्यादा सैंपल आप देख के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द ईयर चेक कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया ना, ज्यादा डीप में मत पढ़िए क्योंकि अभी अब वो ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा है, इतना ही बता देगा वो खुशी हो जाएगा। मतलब तीन चीज आप देखते हैं, वॉक थ्रू में प्रोसेस अंडरस्टैंड करता है, डिजाइन इंप्लीमेंट एक दो सैंपल लेके आप कंट्रोल का डिजाइन चेक करता है कि डिजाइन है कि नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं है। डिजाइन क्यों जाना था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह चेक करने के लिए, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज लिखना है तो लिख लीजिए। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अब देखता है प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं है, थ्रू आउट द ईयर वो हो रहा है, तो डिजाइन बना के तो नहीं छोड़ दिया। सारा पॉइंट बताएगा शुभम नेमा ऑडिट प्लानिंग का, बोलिए। Okay. Audit planning का starting का मतलब starting we started with the planning phase. Planning phase में we can see the nature of the entity, the type, the industry in which it is, and then we can plan accordingly. We can also see the control, the management, the power, hierarchy. These all things देखो we can सिंपल है, see. प्लानिंग आप भी किया होगा कभी ना कभी। आप पहले तो बिजनेस के बारे में समझते हैं, यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिया, कुछ ना कुछ आइडिया लगाया बिजनेस के बारे में। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये वाला काम आप करता नहीं है बेसिकली, यही काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वेरिएंस एनालिसिस करना। आप जाके फाइनेंशियल मांग के वेरिएंस करता है, वेरिएंस निकालता है, बैलेंस शीट पीएल में अलग अलग का वेरिएंस कितना है और वेरिएंस का रीजन क्या है, क्या कारण से वेरिएंस हो रहा है। आपने एक चैप्टर भी होगा ऐसे में, जब वेरिएंस निकालता है, वेरिएंस निकाल के इजी Standard ये आपने costing. किया भी होगा, दोनों का वेरिएंस निकाल के इधर में Standard लाया, उसका costing. रीजन पूछ के बस वो करने से आपको सिग्निफिकेंट अकाउंट पता चल जाता है, जिसमें आपको ज्यादा माथा मारना है, और नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पता चल गया, या थोड़ा बहुत रैप कर लिया, 315 का रैप कर लिया। रैप में क्या होता है, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क हो गया, ऑडिट रिस्क सीआईडी, बिजनेस रिस्क होता है, बिजनेस में क्या 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 रिस्क हो सकता है, उसका किस तरीका का बिजनेस मॉडल है वगैरह, तो हो गया बस।
इतना भी बोल देंगे तो हो गया, और कंट्रोल टेस्टिंग कर लिए, मोटा मोटी इतना पॉइंट बता देंगे तो काफी खुशी है, समझे। सेम सेशन में आ जाइए, ठीक है, वाला लिंक में हो गया, सेम सेशन में आ जाइए अब तो। हाँ।